Hello students, welcome to my YouTube channel PhysicaTube. In this video I will discuss important MCQs of nuclear physics, and I am sure that this video will be helpful for you if you are preparing for any kind of competitive exam in physics. So must watch this video till end. All the questions are very interesting. Let us start with the first question. The first question is the decay constant of end product of radioactive series is. So we know formula of radioactive decay dN over dt is equal to minus lambda n, and also the other thing is the end product of any radioactive series is stable. So if it is stable, then dN over dt will be 0 because there is no further decay. So if dN over dt is 0, it means lambda is 0. So decay constant of end product of radioactive series is 0, or you can say that since the end product is stable, so it cannot decay further, and if it cannot decay, then decay constant will be 0. Second question is radioactivity is a phenomena associated with. So जो radioactivity phenomena है, it is associated with the transformation of nuclei, because in case of radioactivity, heavy nuclei emit radioactive rays like alpha, beta and gamma rays, and they transform into daughter nuclei. So it is actually a transformation of one nuclei into another more stable nuclei. So B is the right answer. Next question, which of the following is electromagnetic in nature? So हमारे पास ये तीनों रेडियोएक्टिव रेज जो हैं अल्फा बीटा और गामा रेज गिवन है, और हमें बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. First of all, let us discuss what is radiation. Radiation is a form of energy, and we can divide radiation into two parts. One is called the particulate radiation. Particulate radiation consists of particles, and second kind is electromagnetic radiation. So alpha and beta rays, these are particles, and they form the particulate radiations, and their penetration power is small, and they can be stopped by a piece of paper, or they can travel very short distances. On the other hand, gamma rays are electromagnetic in nature. If we see the electromagnetic spectra, so gamma rays fall at the top of the electromagnetic spectra, then X-rays, ultraviolet, visible, infrared, radio, and micro and radio waves. So gamma rays are the electromagnetic radiations because gamma rays consist of photons, and these photons are massless and they travel at the speed of light. So the answer of this question is gamma rays. Next question, when uranium nucleus decays into protactinium, the emitted particles are. So here we have the decay U-238. This is the parent nucleus. It decays into protactinium 234, and the atomic number changes from 92 to 91, and we have to find the two particles emitted in this decay. Let us say that these particles are X and Y. So अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट ऑप्शन में न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन डिके है. अगर यहाँ पे एक न्यूट्रॉन आ रहा है और 2 प्रोटॉन आ रहे हैं, सो इट मीन्स कि जो मास नंबर है it should change by 2 and the atomic number should change by 1. Atomic number तो 1 से change हो रहा है, but mass number में difference है 4 का. So it means first is wrong option. Second option है 2 beta particles and 1 neutron. Again 1 neutron अगर हो रहा है with और 2 beta particles हैं, means उस केस में क्या होगा कि जो इस साइड एटॉमिक नंबर है 92 है और इस साइड इंक्रीज हो जाता है जब बीटा पार्टिकल डिके करेंगे. तो अगर दो बीटा पार्टिकल्स डिके हो रहे हैं तो जो नंबर है इट शुड बी 94. इस डॉटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है इट शुड बी 94. सो इट इज़ 91. सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन इज़ 2 बीटा पार्टिकल्स एंड 1 प्रोटोन. यहाँ पे भी अगर
2 बीटा पार्टिकल्स हैं और 1 प्रोटॉन है। 1 प्रोटॉन का मीनिंग अगेन क्या हो गया, अगर हम मास नंबर चेक करें, मास नंबर शुड चेंज ओनली बाय 1, क्योंकि इसका कोई मास नहीं होता, इसका 1 है, बट मास नंबर 4 से चेंज हो रहा है। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ लेट अस चेक द फोर्थ ऑप्शन, 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल। सो अगर यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है और एक बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल मीन्स अल्फा पार्टिकल हो गया हीलियम न्यूक्लियस He4 2 एंड बीटा पार्टिकल हो गया -1 E। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर ये दोनों इमिट हो रहे हैं, सपोज हमने कंसिडर कर लिया कितना बन गया 91 + 2 -1, तो 92 हो गया। तो पेरेंट का जो एटॉमिक नंबर है 92 है और मास नंबर कितने से चेंज होगा 4 से, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली 4 से मास नंबर चेंज हो रहा है। सो इट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो डी इज द राइट आंसर। Question number 5. Proton and alpha particle of same energy 4 MeV are moving in air. The stopping power of alpha particle as compared to that of proton will be. So we know the formula of stopping power, dE/dx is directly proportional to stopping power है तो माइनस भी आ जाता है z²/v², where v is the velocity of the particle, and since alpha particle and proton have the same energy, so velocity will be same, so this factor will not play any role here. So we will check only the atomic number. Atomic number of proton is 1, it is 1p1, and atomic number of alpha particle is 2, it is 2He4. So it means कि जो atomic number है अल्फा पार्टिकल का 2 है, सो स्टॉपिंग पावर कितनी हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की 4 हो जाएगी, 2² करेंगे, और प्रोटॉन के केस में 1 होगी। सो इट मीन्स स्टॉपिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 4 times देन दैट ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज। सो नेचुरली देयर एग्जिस्ट 4 radioactive series. We know one is thorium, neptunium, then uranium and actinium. तो यहाँ पे हमारे पास यूरेनियम है, एक्टीनियम है, थोरियम है। सो लेड सीरीज जो है दिस इज नॉट अ नेचुरल सीरीज बिकॉज लेड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 रेडियोएक्टिव सीरीज। हमारे पास 4 होती है, उसमें से 3 का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज लेड। सो लेड सीरीज इज नॉट अ नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज। Next question is which of the following properties is not associated with neutrino particle. So जो neutrino particle है it is emitted in the positive beta decay where a proton converts into a neutron with emission of positron, and यहाँ पे एक neutrino emission होता है, और जो neutrino है it has almost 0 mass. So A option जो है ये true है। हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। A इसकी प्रॉपर्टी है, और it is also has 0 charge, so न्यूट्रल होता है तो नो चार्ज, ये भी ट्रू है, एंड इट हैज़ हाफ इंटीग्रल स्पिन। सो इसकी स्पिन जो है हाफ इंटीग्रल होती है, दिस इज आल्सो ट्रू। सो जो इसमें से ट्रू नहीं है न्यूट्रिनो के लिए दैट इज ऑप्शन सी, बिकॉज न्यूट्रिनो हैज़ हाफ इंटीग्रल स्पिन। और इस यहाँ पे मैं आपको पॉली हाइपोथेसिस बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू पॉली, कि जब कोई भी पेयर्ड न्यूक्लियस किसी डॉटर न्यूक्लियस में जब डिके होगा एंड इट इज़ अ बीटा डिके, तो यहाँ पे बीटा पॉजिटिव जब बीटा नेगेटिव डिके अगर हो रहा है, सो जो मास नंबर है ए इट विल नॉट चेंज। अगर मास नंबर चेंज नहीं हो रहा एंड इफ़ इट इज़ अ इवन ए न्यूक्लियस, मतलब अगर इसका जो मास नंबर है वो इवन है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका इवन होगा और इसका भी इवन होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ अगर जब तक न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस नहीं दिया गया था उसके पहले के ये आर्ग्यूमेंट हैं, और अगर इसका ए ऑड है तो इसका एंगुलर मोमेंटम टोटल ऑड होगा, ऑड मतलब हाफ इंटीग्रल होगा, और इसका भी एंगुलर मोमेंटम जो है वो हाफ इंटीग्रल होगा। तो दोनों साइड जो है एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। अगर इसका इंटीग्रल है तो इसका इंटीग्रल आना चाहिए, अगर इसका हाफ इंटीग्रल है तो इसका हाफ इंटीग्रल आना चाहिए। बट अगर बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव डिके में अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हो रहा है एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हैज़ स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस और माइनस हाफ, तो उस केस में क्या होगा कि इस साइड जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर इंटीग्रल है तो क्योंकि इस साइड प्लस हाफ ऐड हो रहा है तो इस साइड जो है एंगुलर मोमेंटम वो हाफ इंटीग्रल हो जाएगा, तो दोनों साइड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा।
So in order to conserve the angular momentum, it means there is another particle emitted along with beta particle, और उस पार्टिकल का जो नाम दिया गया दैट इज़ न्यूट्रिनो, और इसकी स्पिन जो होनी चाहिए वो हाफ इंटीग्रल होनी चाहिए लाइक इलेक्ट्रॉन, कि अगर दोनों की स्पिन ऐड हो जाए तो 1 हो जाएगी, अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 0 हो जाएगी। तो 1 और 0 एक ऑप्शन आएगा, और उसका क्या होगा कि इस x और y इनके एंगुलर मोमेंटम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम जो है रिएक्शन का कंजर्व रहेगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई न्यूट्रिनो हैज़ स्पिन हाफ। Next question is, a radioactive specimen consisting of 10,000 active atoms has a half-life of 1 hour. How many radioactive atoms will be left in the specimen after duration of 3 hours? तो इसके आंसर निकालने के दो मेथड है। वन इज़ कि हम डायरेक्टली आइडिया लगा लें कि अगर एक 1 आवर के अंदर, ठीक है, हाफ लाइफ इसकी 1 आवर है, सो इट मीन्स कि आफ्टर 1 आवर जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो हाफ हो जाएंगे, तो आफ्टर 1 आवर कितने बचेंगे 5000, ठीक है। और नेक्स्ट 1 आवर के अंदर क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, सो इट मीन कितने बचने चाहिए 2 आवर्स के बाद 2500, और 3 आवर्स के बाद इसका हाफ हो जाएगा। इट मीन्स आफ्टर 3 आवर्स हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम बचेंगे दैट इज़ 1250। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन ए। और दूसरा इसका मेथड है, इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं n/n0 इज़ इक्वल टू 1/2 पावर t/t हाफ। t जो है जो हमारे पास टाइम गिवन है, और t हाफ जो है दैट इज़ द हाफ लाइफ। तो यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हमें बताने हैं फॉर द आफ्टर द गिवन टाइम, वो कितने होंगे, और n0 जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं एट टाइम t इक्वल टू 0। यहाँ पे 10,000 है, और यहाँ पे हाफ आ गया, एंड t/t हाफ करना है, t इज़ द टाइम, जहाँ पे 3 आवर्स के बाद पूछा है कितना होगा नंबर ऑफ़ एटम्स, और t हाफ है 1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8, और 1/8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10,000 दूसरी साइड जाके, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी हमारा n कितना बनेगा 1250। सो दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ़ा पार्टिकल इज़, अल्फ़ा पार्टिकल जो हमारा होता है इट इज़ अ हीलियम न्यूक्लियस। अल्फ़ा पार्टिकल को लिखते हैं 2He4, तो यहाँ पे ये इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ नोन एज। सो डिके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो गया 1/λ, एंड इट इज़ कॉल्ड द मीन लाइफ। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 1 Rutherford we mean. So Rutherford is a unit to measure the radioactivity of a radioactive substance. So radioactivity is considered in terms of number of atoms which disintegrated per unit time. So यहाँ पे जो इसका आंसर है दैट इज़ सी। 1 Rutherford means 10⁻⁶ disintegration per second. Next question, a radioactive nuclide is emitting beta particle at a certain rate. When this radioactive nuclide is heated to a very high temperature, the rate of emission of beta particle will. So यहाँ पे हमें बताना है कि जो इफ़ेक्ट होगा टेम्परेचर का वो क्या होगा ऑन द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। सो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो है इट इमिट्स रेडियोएक्टिव रेज, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो इसका किसी भी एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। जो रेट है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का डिके होने का, इट विल रिमेन सेम, इट इज़ नॉट इफेक्टेड with increase in temperature, pressure or any other atmospheric condition. Next question, for the alpha decay from natural radionuclides, which of the following observations does not hold true? First is the emission of alpha particle takes place following tunneling of the barrier. This is right. Alpha particle decay through the tunneling of the potential barrier of the nucleus. The energy of the alpha particle are emitted by radionuclide with a shorter half-life. This is also true. The energy required by alpha particle to penetrate the radionuclide is much smaller than the kinetic energy of alpha particle
emitted by that nuclide. So this is wrong because alpha particle emission जो है it is explained with the help of quantum mechanics. Quantum mechanically अगर ये पोटेंशियल बैरियर है देन अल्फा पार्टिकल जो है इट इज़ हिटिंग द पोटेंशियल बैरियर अगेन एंड अगेन एंड इट हैज़ अ टेंडेंसी टू टनल थ्रू द बैरियर, और इसकी किनेटिक एनर्जी जो होती है बैरियर से लेस होती है. सो इफ़ इट हैज़ लेस किनेटिक एनर्जी सो इट हैज़ नो टेंडेंसी टू एंटर इनटू द न्यूक्लियस अगेन. सो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग एंड डी ऑप्शन जो है अल्फा पार्टिकल डिकेइंग रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैव मास ग्रेटर देन 200. दिस इज़ राइट. सो इसका जो आंसर है दैट इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेडियो न्यूक्लियाइड विद मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड अंडरगोज पॉजिट्रॉन डिके. द प्रोडक्ट विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय. तो हमारे पास यहाँ पे सपोज एक्स कोई न्यूक्लियस है, जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ए इज इट्स मास नंबर एंड इट अंडरगोज पॉजिट्रॉन डिके विच इज़ बीटा पॉजिटिव डिके. सो बीटा डिके जो होता है उसमें मास नंबर चेंज नहीं होता. सो इट मीन्स कि ऑप्शन ए और बी में से कोई एक है. ठीक है, मास नंबर ए ही रहेगा एक्स का. सपोज ये वाई हो गया डॉटर न्यूक्लियस, मास नंबर चेंज नहीं होता. ठीक है, और क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है +1 है तो यहाँ पे जो टोटल नंबर हो जाएगा z जो है z-1 हो जाएगा इन ऑर्डर टू कंजर्व द एटॉमिक नंबर. सो इट मीन्स कि जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास ए होगा, मास नंबर ए होगा और एटॉमिक नंबर z-1 होगा. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड 214 डिकेज बाय 2 बीटा डिकेज एंड 1 अल्फा डिके. द रिजल्टिंग न्यूक्लियस इज. सो यहाँ पे लेड जो है मास नंबर 214 एंड एटॉमिक नंबर 82, इट डिकेज बाया 2 बीटा डिकेज. ठीक है, 2 बीटा रेज हो गई एंड 1 अल्फा रे है दैट इज He24. सो इट मीन्स कि जो इसका मास नंबर है इट विल चेंज बाय 4. ठीक है, तो जो यहाँ पे न्यूक्लियस आना चाहिए उसका मास नंबर होगा 210 और उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये -2 हो गया, ये +2 है. इट मीन्स एटॉमिक नंबर विल नॉट चेंज, एटॉमिक नंबर होगा 82. सो एटॉमिक नंबर 82 एंड मास नंबर 210. सो इसमें से कौन सा होगा, दिस इज़ पोलोनियम. सो राइट ऑप्शन इज डी. एंड लास्ट क्वेश्चन इज द वर्ड क्यूरी इज रिलेटेड टू. क्यूरी जो है इट इज़ रिलेटेड विद रेडियो एक्टिविटी. So this is answer C. So that is all about the second part of MCQs on nuclear physics. And if you like the video, please like, comment and share. Thank you.